Welcome to all of you in my YouTube channel of Organic Chemistry by Dr. Sanjay Singh. My next video on YouTube channel is Carbohydrate Lecture 2 is classification of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेटों को टू मेजर क्लास में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट इज शुगर एंड सेकंड इज नॉन शुगर. शुगर इज आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स एंड नॉन शुगर आल्सो नोन एज पॉलीसैकराइड्स. Carbohydrate can be divided into two major categories: sugar and non-sugar. Sugar is called saccharide. Non-sugar is known as polysaccharide. Very simple and most important for the examination point of view in BSc second year students. Sugar, non-sugar. Sugar also classified or categorized into two categories, as well as non-sugar also categorized into two categories. First of all, we take sugar or saccharide. Sugar or saccharide. Sugar, those carbohydrates or those saccharides which are sweet in taste called sugar. Very simple definition. जो शर्कराएं स्वाद में मीठ होते हैं उन्हें हम शुगर कहते हैं. They are classified into two categories. First is monosaccharide. Other is oligosaccharide. Monosaccharides, those saccharides which are not hydrolyzed into smaller saccharides called monosaccharides. Monosaccharides are two type aldoses. Second is ketoses. They are further divisible only on the basis of number of carbon atom. Aldoses are four type. Ketoses also four type. एल्ड कॉमन होगा चारों में, एल्डो शब्द. उसके बाद ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ओजेज. तो एल्डो ट्राइओजेस
aldotetroges, aldopentages, aldohexoses. Most important example of aldohexoses is glucose. Galactose, mannose. Essential. What do you mean by monosaccharides? Explain this suitable example. First example is glucose. Aldotrioses, not important but known for knowledge. एल्डोट्राइओज को हम कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल्डोटेट्रोजिस का एग्जाम्पल है इरिथ्रोज, एल्डोपेंटोज का एग्जाम्पल है राइबोज और एरेबिनोज। Molecular formula very simple. Putting the value of x in general formula of carbohydrate CX H2O का whole x is equal to 3 gives general formula of aldotrioses, x is equal to 4 aldotetroges, x is equal to 5 aldopentages, x is equal to 6 aldohexoses. Similarly, monosaccharides second type ketoses में प्रीफिक्स कीटो, कीटो, कीटो कहाँ याद करना पड़ा, कीटो सब वही है, यहाँ लिखा हुआ है कीटोट्राइओज, कीटोटेट्रोज, कीटोपेंटोज, कीटोहेक्सोज। इसका एग्जाम्पल है वेल नोन फ्रक्टोज, देयर इज नो मेटल। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ट्राइओज और एल्डोज और कीटोज और सिमिलर but structural formula different. Molecular formula aldotetroz, ketotetroz. तो हमें क्लासिफिकेशन का एक पार्ट गॉन, मोनोसैकेराइड गॉन। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, इसको हटा दें। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए, दोनों के लिए हमें कुछ नहीं करना है। जनरल फार्मूला हमारा CX H2 का होल x फॉर ट्राइओज x is equal to try for 3 C3 H6 O3 फॉर टेट्रोजेस जोड़ेंगे एल्डो तो एल्डोट्राइओज, जोड़ेंगे कीटो तो कीटोट्राइओज। फॉर टेट्रोजेस X is equal to 4 C4 H8 O4
For pentoses, X is equal to 5, C5, H10, O5. For hexoses, X is equal to 6, C6, H12, O6. Very simple. Decide general formula of triose, tetrose, pentose, hexoses. Prefix keto, aldehyde, keto group. Prefix aldo, aldehyde group. Now we can discuss oligosaccharide. Oligosaccharide. Those saccharides which on hydrolysis gives 2 to 10 moles of monosaccharides. ऐसा सैकराइड हाइड्रोलिसिस पर ओलिगोसैकराइड जो होते हैं इनका जल अपघटन किया जाए, दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस, कितने देंगे 2 to 10 moles of monosaccharide. यही डिफिनेशन है ओलिगोसैकराइड्स में दो सैकराइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 to 10 moles of monosaccharides called oligosaccharides. It is of following type. Following type में हम कुछ बताते हैं, जैसे डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड, so on. Oligosaccharides categorized into disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide, pentasaccharide, hexasaccharides, heptasaccharides, nonosaccharides and decasaccharides. डाइसैकराइड का मतलब 2 सैकराइड, ट्राइसैकराइड का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4 और फाइनली डेका का मतलब 10 मोल मोनोसैकराइड मिलेंगे अगर इनका हाइड्रोलिसिस होता है। तो डाइसैकराइड्स का एग्जांपल आप पहले से जानते हैं, मोनोसैकराइड आपको पता है। तो डाइसैकराइड में जैसे हमने लिखा सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, कोई दिक्कत नहीं, इसका फार्मूला क्या होता है मुझे ग्लूकोज का या फ्रक्टोज का अगर याद है तो ग्लूकोज का मुझे मोनोसैकराइड का याद है C6H12O6। रिपीटिंग यूनिट किसी भी कार्बोहाइड्रेट का होता है, R फॉर रिपीटिंग, U फॉर यूनिट, C6H10O5 रिपीटिंग यूनिट। अगर ये मोनोसैकराइड है, इसमें अगर प्लस कर दिया जाए तो डाइसैकराइड, मतलब इस रिपीटिंग यूनिट को इसमें जोड़ दिया जाए तो डाइसैकराइड का फार्मूला मिल जाएगा। जैसे इसमें जोड़ना है C6H10
O5 जोड़ते हैं O11 H22 C12 मिला यहां पर आपका ये इसका फार्मूला सुक्रोज का C12 H22 O11। ट्राइसैकराइड का फार्मूला चाहिए, डाइसैकराइड मिल चुका है, डाइसैकराइड प्लस रिपीटिंग यूनिट, इसमें आप जोड़ दीजिए इसको C6H10O5 को। अगर आप प्लस करते हैं इसमें C6H10O5 को तो देख लीजिए O C कितना हो जाएगा C12 और प्लस 6 C6 18 H कितना हो जाएगा 22 10 32 O कितना 11 5 16। और इसका एग्जाम्पल है रेफिनोज। टेट्रासैकराइड का फार्मूला अगर चाहिए इसमें जोड़ दीजिए रिपीटिंग यूनिट C6H10O5 को, दिस इज ए रिपीटिंग यूनिट। जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा C18 2 20 4 24 C24 H32 42 16 21 और 5 ये मिल गया। इसे कहते हैं स्टेचिरोज। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा 2 मोल ऑफ मोनोसैकराइड्स। रेफिनोज का करवाएंगे हाइड्रोलिसिस तो 3 मोल मिलेगा ग्लूकोज फ्रक्टोज एज वेल एज गैलेक्टोज। स्टैचियोज का हाइड्रोलिसिस करा दें तो 4 मोल मिलेगा ग्लूकोज फ्रक्टोज एज वेल एज 2 मोल ऑफ गैलेक्टोज, ये मिलेगा। नाउ वी डिस्कस द पॉलीसैकराइड्स। Polysaccharides are categorized into 2 categories, homopolysaccharides and heteropolysaccharides, जिसे हम क्या कहते हैं नॉन शुगर कहते हैं। Non-sugar या polysaccharides, those carbohydrates which are not sweet in taste called non-sugar। polysaccharides में अगर हम चलते हैं तो एक आपका हुआ होमो पॉलीसैकराइड, सेकेंड हुआ हेटेरोपॉलीसैकराइड। होमोपॉलीसैकराइड्स और हेटेरोपॉलीसैकराइड्स में डिफरेंस कैसे करेंगे? दोज पॉलीसैकराइड्स which on hydrolysis gives only one type of monosaccharides, and heteropolysaccharides those polysaccharides which on hydrolysis gives more than one type of monosaccharides. Example: starch. Example: cellulose. स्टार्च का फार्मूला क्या होगा? रिपीटिंग यूनिट की तरह C6H10O5 whole N on hydrolysis N mole of H2O gives only glucose C6H12O6 glucose only N mole of glucose 500
1000 मोल केवल ग्लूकोज के बनेंगे। सेलुलोज, इसका भी फॉर्मूला वही होगा C6H10O5 का होल n। ये इसका अगर हाइड्रोलिसिस कराया जाए n मोल H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट गिव्स, ग्लूकोज भी दे सकता है, फ्रक्टोज भी दे सकता है, गैलेक्टोज भी दे सकता है, सो ऑन। तो ऐसे पॉलीसैकेराइड जिनका जल अपघटन कराने पर केवल और केवल एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड देते हैं, उन्हें हम कहते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स। और जो डिफरेंट तरह के मोनोसैकेराइड देते हैं उन्हें कहते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। इट इज ए वेरी सिंपल एंड स्मॉल टॉपिक and very clear to achieve number in examination BSc second year, इसलिए इसको आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बार बार आप साल पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें कई बार पूछा है। इतने आपको करना है, 4 नंबर पाना है, इसलिए आप इसको तैयार कर लें। कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत तरह से बनते हैं कि राइट द जनरल फॉर्मूला ट्राइसैकेराइड्स, नाम दे दिया तो भी कोई बात नहीं है, एल्डो ट्राइयूज, कीटो ट्राइयूज। जनरल फॉर्मूला ट्राई दिया तो X=3 जनरल फॉर्मूले से आप हल करेंगे। पॉलीसैकेराइड से अगर क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज होमोपॉलीसैकेराइड्स, तो मैंने आपको बता दिया। ओलिगोसैकेराइड से पूछा ट्राइसैकेराइड्स with example raffinose on hydrolysis gives glucose, fructose, galactose. Tetrasaccharide on hydrolysis gives glucose, fructose as well as 2 moles of galactose. Example tetrasaccharide का stachyrose, that is end of classification of carbohydrate। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।